द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर से इस प्रोग्राम पे नजर डालते हैं क्या कुछ खास आज जम्मू कश्मीर में देखने को मिला और क्या रही बड़ी अपडेट्स। तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। पहली खबर पर आपको लेकर चलते तो आपको जानकारी दे कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सोने की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। जी हां, आईटीबीपी के जवानों ने चीन से तस्करी कर लद्दाख में लाई गई 108 किलो सोने की खेप को जब्त किया है। इस मामले में 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रदेश के जिला लेह के न्योमा सेक्टर में 2 आरोपी धरे गए हैं। 21 बटालियन आईटीबीपी के जवानों ने घोड़ों के साथ 2 तस्करों से 108 किलोग्राम सोने की खेप पकड़ी। दोनों आरोपियों की पहचान सेरिंग चिनवा और स्टेंजिन डोरग्याल निवासी कोयलू न्योमा के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कोयलू गांव में एक व्यक्ति के घर में कई करोड़ रुपए का सोना रखा हुआ था और इसकी खुफिया जानकारी मिल रही थी। इस सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस ने सोने की जब्त की और साथ ही दोनों ने कथित तौर पर सोने की तस्करी की और इस गांव में अपने घर पर रखा हुआ था। मामले में लद्दाख पुलिस की जांच फिलहाल चल रही है और इसको लेकर प्रेस वार्ता भी जो है फिलहाल देखने को मिल पा रही है। क्या रहा इस प्रेस वार्ता में, आइए नजर डालते हैं। Yesterday around 1:30 p.m., that is on 9th July, 21st Battalion of ITBP launched a long-range patrolling in the border areas in subsector of the Eastern Ladakh. The general area is Chismule, Narbola, Zakle and Zakla to check infiltration as well as smuggling, as this is summer and activities are heightened around this season. Also we got some inputs of smuggling in the area of Sri Gaple in Ladakh. So the team headed by Sri Deepak Bhatt, Deputy Commandant GD, consisting of 3 SOs and 17 others, were launched. During the patrolling, on reaching the area of Sirigapale, that is 1 kilometer away from the IB, at around 1:30 p.m, the party came across 2 suspicious persons with mules. When they tried to chase them, they ran, and so the party, our patrolling party, also chased them and took them into custody. And on being suspicious in nature, they went to the camp where they pitched their tents. During the search, they came across many things, but these 2 persons initially they said they are collecting medicinal plants, but our team, after taking into consideration their suspicions, they searched the tents and seized several items, suspected items, and after that the federal party left for our tactical headquarters at Koyul and reported the matter to the CO of 21st Battalion, Ajay Nirmalkar is here. The matter was reported to the higher headquarters also, and further investigation and action is in progress along with our sister organizations. This patrol was planned by our sector Srinagar with the approval of the frontier here, and several other patrol party were also simultaneously launched because of this kind of inputs. Now the seized items during the search included, that is on display here also. I'll just read out 108 numbers of gold bars. One gold bar is approximately 1 kg, slightly more than 1 kg. So 108 bars means 108 kg of gold. They have all been weighed also, and we have checked it out. The actual weight is actually even more than 108 kgs, slightly more than that, some grams. We also seized 2 mobile phones, 1 binocular, some Chinese food items like cake, milk, 2 cans, milk lassi, some knives, 2 knives, as mentioned earlier, 2 ponies also,
and then torch, hammer, nose plier, and the two persons so far have been identified as Tenzin Targi. He is around age 40 years. Father's name is Shafel Wangdur. The other one is Chering Chamba, approximately age 69. The father's name is Nobu Dozi. Both claim that they are from Hanle. They have followed all the formalities, and it may be mentioned that the ITBP is also authorized to carry out search and seizures as mandated by the Minister of Home Affairs. चलिए अगली खबर पर आपको लेकर चले तो बीते कल की बात करें, लगातार सर्च ऑपरेशन देखने को मिल पा रहा है और आज तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है जिला कठुआ के बिलावर तहसील के मशेडी बदनोटा इलाके में। साथ ही डोडा की बात करें तो बीते कल डोडा में इनकाउंटर देखने को मिला और सफलता फिलहाल हाथ नहीं लगी है और आज दूसरे दिन भी डोडा में सर्च ऑपरेशन जारी रहा। चलिए तस्वीरें दिखाते हैं सर्च ऑपरेशन की। नहीं इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों को लेकर एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो दावा कर रही थी कि आर्टिकल 370 हटने के बाद यहां पर शांति कायम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दिन ब दिन स्थिति खराब होती जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चलिए इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको बता दें कि श्री अमरनाथ यात्रा के चलते तीर्थ यात्रियों में लगातार उत्साह देखने को मिल पा रहा है और पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार अब तक यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी दोगुनी हो चुकी है। वहीं आतंकी हमले भी कई हद तक इन श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए नहीं डरा पाए और आज जत्था रवाना किया गया। वहीं दूसरी ओर अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुगण जितनी भी मैनेजमेंट है, जितनी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किए गए कार्य हैं, उनकी तारीफ करते भी नजर आए। क्या कुछ कहना था श्रद्धालुओं का, आइए नजर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं आपके साथ बेज़बाब वजाशी। जैसा आपको बाखूबी मालूम है कि 29 जून से जो है इस बार अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। करीबन 12 दिन हो गए, तो इन 12 दिन में बताया जा रहा है कि करीबन 2 लाख से ज़ायद श्रद्धालुओं ने यात्रियों ने जो है बाबा बर्फानी के दर्शन किए, चाहे वो बिहार से यात्री आए हो या जम्मू से आए हो या हरियाणा से। मुल्क भर से जो है यात्री पिछले 12 दिन से जो है रोज़ जो है सफ़र कर रहे हैं अपने घर से अमरनाथ यात्रा की तरफ। हॉस्पिटल्स भी वहाँ शॉर्ट टर्म के लिए बनाए गए हैं। अगर हम यात्रियों की बात करें तो वो काफ़ी खुश है, इस तरह के इंतज़ाम जो है इस बार वो देख रहे हैं, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सिक्योरिटी के हवाले से बात हो, या सड़क की बात हो, या RF टैग जो इस बार इस्तेमाल किया गया है उसकी बात हो, या और भी बाकी जो फैसिलिटीज़ उसकी बात हो। कुछ कहना है यात्रियों का इस बार जो है जिस तरह के इंतज़ाम देखने को मिले हैं, आइए उनसे जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है देवागति मुखर्जी। मैं आई हूँ कोलकाता से, वेस्ट बंगाल, हुगली डिस्ट्रिक्ट पूर्णनगर बोल के एक जगह है वहाँ पे। अभी हम लोग पहलगांव बेस कैंप में रुके हैं। यहाँ पे भी हम लोग लंच किए, ब्रेकफास्ट भी हमने किए। खाना वगैरह बहुत अच्छा है, टॉयलेट भी वॉशरूम काफ़ी साफ सुथरा है, पानी वगैरह हर टाइम अवेलेबल है। यहाँ पे वाटर भी मिल गया हम लोग को पानी पीने के लिए। एंड सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स खड़े हैं वो लोग बहुत हेल्पफुल है। अभी तक हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। बाबा जी का दर्शन करने जाना है, आज रात में हम लोग यहाँ से यात्रा के लिए निकलेंगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ऊपर जाके बाबा जी का दर्शन करके नीचे आएंगे, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। मेन जो बात है फैसिलिटी हम लोग को बहुत अच्छा मिले। अभी तक श्रीनगर उतरने के बाद ये पहलगांव तक रास्ता काफ़ी अच्छा गया है, खाना वगैरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, अच्छे से काफ़ी अच्छा। चलिए अगली खबर पर आपको लेकर चले तो CPIM नेता तारिगामी ने श्रीनगर में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों ने वेतन में बढ़ोतरी और निजीकरण को रोकने की मांग की। क्या कुछ कहना था उनका, आइए नजर डालते हैं।
तुम्हारे साथ है, इनकलाब जिंदाबाद। तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है, हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं। हम कैसा शिकायत कर रहे हैं साथियों। सबसे पहले मैं आप मुल्क में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की तरफ से डिमांड्स डे मनाया जा रहा है। देश में तशरीफ आप यहाँ पहुँचे, यहाँ आए, आपको इंतज़ार करना पड़ा कुछ देर के लिए, माजरत खा हूँ। आज CITU की तरफ से जो मुल्क का एक बड़ा ट्रेड यूनियन प्लेटफॉर्म है, पूरे मुल्क में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की तरफ से आज डिमांड डे है। हमारी मांगे हैं, डिमांड चार्टर है। उन मांगों में सबसे बड़ा मसला है कि मुल्क के आवाम को जॉब्स दिए जाए, नौजवानों को जॉब चाहिए। और जी चलिए सर, बहरहाल ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। और इसके अलावा हमारी मांग ये है कि जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, प्राइवेटाइज जो बड़ी बड़ी कंपनियों को, एस्टेब्लिशमेंट्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जैसे रेलवे को, जैसे और जो भी हमारे सरकार के तहवील में डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, इनके पास एक ही इलाज है, जो भी हमारे मुल्क के एसेट्स हैं बड़े सरमाएदारों के हवाले किए जाए, उनको बेचा जाए। उसका नतीजा ये होगा कि रोजगार के वसाइल और कम होंगे, बेरोजगारी में इजाफा होगा। इसलिए हमारी मांग है कि निजकारी का सिलसिला, प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला बंद किया जाए। ये पहली मांग है। और दूसरी मांग हमारी ये है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। आशा वर्कर, स्कीमों में काम करने वाले, NRHM में, या इसके अलावा जो बाकी ICDS स्कीम में काम करने वाले हैं, कैजुअल लेबर हैं, कंट्रैक्चुअल लेबर हैं। आज तो बड़ा सिलसिला बन चुका है। आज रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कम, बल्कि कैजुअलाइजेशन, कंट्रैक्चुअलाइजेशन, आउटसोर्सिंग का सिलसिला शुरू किया गया है कि आज है कोई कहीं पर खड़ा, घर में मिठाई बांटे, मुझे रोजगार मिला, लेकिन शाम को पता नहीं वो रोजगार उसके हाथ में है भी या नहीं है। चलिए अगली खबर पर आपको लेकर चले तो जम्मू कश्मीर में अन्यायपूर्ण बिजली बिल बढ़ोतरी के खिलाफ अपनी पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कई अन्य जरूरी सार्वजनिक मुद्दों और शिकायतों पर भी प्रकाश डाला। पार्टी के राज्य सचिव और मुख्य प्रवक्ता मुंतजिर मोहुद्दीन और जिलाध्यक्ष श्रीनगर नूर मोहम्मद शेख के नेतृत्व में श्रीनगर के शेख बाग में पार्टी के मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया गया। चलिए नजर डालते हैं इस विरोध प्रदर्शन पर। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ऐसी सरकार हो, ऐसी सरकार हो, ऐसी सरकार बच्चे करते हैं, क्या कहना है, पुलिस का काम करे लेकिन ये प्रोटेस्ट का जरूरत नहीं है। ये हमारे देश को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ऐसी सरकार, चाहिए थी वो मुनासिब तरीके पे नहीं होती है। 8 घंटे की बिजली आती है रफ्ता रफ्ता किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में, लेकिन बिजली फीस जो वसूल किया जा रहा है वो मुसलसल 24 घंटे के मुताबिक वसूल किया जा रहा है, जबकि बिजली सप्लाई सिर्फ 8 घंटे रहती है। हमने कई बार LG एडमिनिस्ट्रेशन से बजरिए मीडिया भी, मेमोरेंडम्स के जरिए भी मुतालबा किया कि इसमें आप कमी कर लीजिए। पानी हमारा, बिजली हमारी जा रही है,
कंसेशन रेट्स पर बाहर के स्टेट्स को, लेकिन यहाँ के लोगों से बेगार लिया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। अब जब इस पानी सर से ऊपर हो गया है, आज तक हमने कोशिश की, ज़बानी तौर भी बता दिया, तारीरी तौर भी अपीलें की कि इसमें आप मेहरबानी करके रियायत बख्श दीजिए, लोगों को बिजली फीस कम कर दीजिए, लेकिन किसी के कान पे क्या कहते हैं वो जूं तक नहीं रेंग रही है। उस वजह से हम मजबूर हुए आज ये मनमानियों के खिलाफ सड़कों पे आए हैं। आज हमारी जो पार्टी की लीडरशिप है जिला श्रीनगर के ओहदेदारान और वार्ड प्रेसिडेंट साहिबान आए हैं आज सड़कों पे इस चीज के खिलाफ एहतजाज करने के लिए और अपील भी दोहराने के लिए कि बिजली फीस में कमी कर लीजिएगा। 8 घंटे की आप बिजली दे रहे हैं, सिर्फ 8 घंटे का फीस वसूल कर लीजिएगा और गरीब एरियाज में स्मार्ट मीटर्स को विड्रा कर लीजिएगा। नंबर 2, जो आप पानी के मीटर्स लगवाने जा रहे हैं, अब हमें नाप के पानी भी पीना पड़ेगा, प्यास बुझानी पड़ेगी, हमने सोचना पड़ेगा मैंने आधा गिलास पानी पीना या 1 गिलास, जबकि ये हमारी जो सरजमीन है अल्लाह की नियामतों से पानी से सरशार है। उसी से बिजली भी आती है, उसी से बेतहाशा पानी भी आता है। आप बाहर के मुल्कों को हमारा पानी देते हैं, बाहर की रियासतों को हमारा पानी देते हैं, लेकिन हमें पानी पीने पर आप कदगन लगाने जा रहे हो। तो हमारे यही 2 मुतालबे आज हैं। एक, बिजली फीस हमें उतना ही लीजिए जितना आप बिजली हमें सप्लाई कर रहे हो, वो भी दीजिए कंसेशन रेटों पर, और पानी पे जो आप मीटर्स लगवाना चाहते हो वो पूरी तौर वो पुरानी फिलहाल आप बंद कर लीजिएगा। जमहूरी सरकार को आने दो, ये जमहूरी फैसले हैं, ये जमहूरी नवाज। इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।